Hello everyone, this is Neha Sonia and I am your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well. And yes, we have started with civics. Students, we have started your third book, that is social and political life, and from this video we are going to start your another chapter, that is chapter number 4, and we will talk about key elements of a democratic government. Students, from chapter number 1 to chapter number 3 we have already completed, and in these chapters we have discussed about so many things, we have learned about so many things. We have discussed about diversity, we have discussed about our differences, we have discussed about unity in diversity, we have discussed about inequality versus equality, we have discussed about so many issues that we are facing in our society, in our country. Students, we have discussed about government, we have discussed about types of government, we have discussed about meaning of government, we have discussed about the functions government do. Students, in this video we are going to start your chapter number 4, in which we will talk about the struggle stories. Yes, we will talk about the main elements of a democratic government. If in India, यहाँ पे हम जानते हैं India is a democratic government, India is a democratic country. So यहाँ पे democracy है, और democracy होने के लिए क्या क्या अनिवार्य शर्तें या फिर key elements होने चाहिए. So we will talk about so many things in this chapter, and we will talk about South Africa apartheid struggle. So we will talk about the struggle story, and let's start it. So students, under the chapter we will talk about these issues in this topic. Main factors affecting the work of democratic government. So we will talk about the main factors, the topic, the things जो डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं. अंडर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम वी विल टॉक अबाउट सो मैनी थिंग्स. हम यहाँ पे देखेंगे कैसे गवर्नमेंट जो है वो काम करती है, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. सभी के लिए इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और भी बहुत सारे काम जो है गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन दिस चैप्टर. वी विल टॉक अबाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन. यस स्टूडेंट्स, इफ देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वहाँ पे अनिवार्य है पब्लिक पार्टिसिपेशन का होना, तभी जो डेमोक्रेसी है वो अच्छे से, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छे से काम कर पाएगी. सो पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है. We will talk about solve problems. So जो problems हैं, जो issues हैं which we are facing in this country, we will talk about the solutions. You can give the suggestions also. And we will discuss the ideas of equality and justice. So equality और न्याय के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ideas हो सकते हैं, we will talk about all of these things under chapter. So start करेंगे हम सबसे पहले apartheid struggle in South Africa. Africa is a continent, और वहाँ पर South Africa जो है एक country है इस Africa continent के अंदर. तो we will talk about the struggle story, जहाँ पे struggle करना पड़ रहा है लोगों को अपनी skin में जो differences है. Yes, we look डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो ये हमारा स्किन टाइप, स्किन कलर बेस भी जो डिफरेंसेस हैं वो डिस्क्रिमिनेशन के वजह बन जाती है. इस आधार पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, आपके साथ में इग्नोर किया जा रहा है, आपको नेगलेक्ट किया जा रहा है, आपको बहुत सारे जो आपके ह्यूमन राइट्स हैं उनसे हटाया जा रहा है. तो ये जो स्ट्रगल करना पड़ रहा था वहाँ के लोगों को, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. सो अपार्थाइड स्ट्रगल मीन्स, अपार्थाइड जो स्ट्रगल, जो डिस्क्रिमिनेशन आपकी स्किन कलर के ऊपर बेस्ड हो. ठीक है. साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री वेयर पीपल ऑफ मैनी रेसेस लिव. सो अलग अलग नस्लों के लोग यहाँ रहते हैं. वाइट मीन्स गोरे, ब्लैक यानी काले, और डार्क लाइक इंडियंस भी यहाँ पे रह रहे थे. तो अब हम यहाँ बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनके स्किन कलर जो है अलग अलग था. दे ऑल आर हैविंग डिफरेंसेस. सो इनके आधार पर, स्किन कलर के आधार पर भी यहाँ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है. कैसे? सो फर्स्ट वी हैव टू डू अ एक्टिविटी. आपको एक काम करना है स्टूडेंट्स. आपको ये जो मैप दिया है इसमें अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर साउथ अफ्रीका को ढूंढना है. सो कैन यू फाइंड द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन द मैप. सो आपको ये जो मैप दिया है इसमें साउथ अफ्रीका को ढूंढना है. आई विल हेल्प यू इन दिस. सो यहाँ ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक कंट्री है यहाँ साउथ अफ्रीका. क्लियर? अब साउथ अफ्रीका में रहने वाली एक लड़की है माया नायडू, और उसी के साथ स्टोरी स्टार्ट होती है. सो हियर स्टोरी ऑफ माया नायडू.
Maya Naidu, an 11-year-old South African girl from Johannesburg. So Johannesburg में रहने वाली माया नायडू जो है वो यहाँ पे स्टोरी का प्रमुख पात्र है और ये अपनी मदर से कुछ बात कर रही है और इन दोनों के बीच में होने वाला जो कन्वर्सेशन है वही यहाँ स्ट्रगल स्टोरी को बता रहा है. So ये क्या कर रही थी? She was helping her mother clean old boxes one day. She found a register or you can say scrapbook filled with newspaper clippings and photographs. Okay, तो then जब वो हॉलीडेज़ पे या फिर कुछ ऐसे वन डे एक दिन वो अपनी मम्मा के साथ मिलके कुछ काम कर रही थी, उन्हें हेल्प कर रही थी, असिस्ट कर रही थी. सडनली शी फाउंड अ स्क्रैप बुक जिसमें बहुत सारी कटिंग्स, न्यूज़पेपर की कटिंग्स और कुछ क्लिपिंग्स अटैच की हुई थी. सो It contained a lot of pictures of a 15-year-old school-going boy. So यहाँ पे उसने देखा कि एक 15 साल के स्कूल गोइंग बच्चे की बहुत सारी पिक्चर्स भी उस स्क्रैप बुक में रजिस्टर में अटैच की हुई हैं. ठीक है. When Maya asked her mother about the boy, she found out that his name was Hector Peterson. So उसका नाम जो था Hector Peterson, उसे पता चला. He was shot by the police. और उसे पुलिस के द्वारा गोली मार दी गई. क्या आपके लिए एक शॉक नहीं है कि एक 15 साल का स्कूल गोइंग बच्चा जो है उसे साउथ अफ्रीका की जो पुलिस थी उसने गोली मार दी? क्यों? व्हाट वाज द रीज़न ऑफ इट? सो माया गॉट अ बिग शॉक. व्हाई? उसने ये पूछा. माया को भी एक शॉक लगा कि क्यों एक बच्चे को मारा गया पुलिस के द्वारा. क्या थी इसके पीछे की स्टोरी? Maya's mother explained that South Africa was previously governed by apartheid laws. So South Africa में पहले रंग भेद के आधार पर कानून बने हुए थे. ठीक है. स्किन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वहाँ किया जा रहा था और उसी आधार पे कानून भी बनाए हुए थे. लाइक वहाँ की जो गवर्नमेंट थी जिनका स्किन अच्छा है, फेयर है, ब्राइट है और वाइट है, उन्हें अच्छे रूप में उन्हें ट्रीट किया जा रहा था और जिनका स्किन टोन जो है उनसे अलग है, ब्लैक है, डार्क है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. ठीक है. अपार्थाइड मीन्ड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन स्किन कलर. सो अपार्थाइड का मीन क्या है? अपार्थाइड मैन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन स्किन कलर, यानी कि आपका जो स्किन कलर है उसके आधार पर भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा. लाइक अगर मैं सांवली रंग की हूँ तो मेरे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है. क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अगर आपका कलर फेयर नहीं है, वाइट नहीं है, आपका जो स्किन टोन है उसके आधार पर आपको बहुत ज़रूरी जो सर्विसेज हैं, बहुत ज़रूरी जो आपके राइट है उनसे आपको इग्नोर किया जाए, उनके साथ आपको डिस्क्रिमिनेशन किया जाए? नहीं ना. सो पर यहाँ पे ऐसा हो रहा था लोगों के साथ. थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स. क्या आपके साथ में क्लास में स्किन बेस्ड आधारित कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है? क्या टीचर के लिए सभी बच्चे इक्वल नहीं होते हैं? इफ़ वी टॉक अबाउट योर पेरेंट्स, अगर आप फेयर हैं, आपके ब्रदर या फिर वो हैं जो वाइट नहीं हैं, उनका स्किन टोन अलग है, तो क्या आपके पेरेंट्स आपके साथ में आपको जो प्यार देते हैं वो कोई भेदभाव करते हैं? नहीं ना. इफ़ वी टॉक अबाउट आवर कंट्री इन डेमोक्रेसी, यहाँ पे स्किन टाइप बेस्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. बट हियर इन साउथ अफ्रीका वॉज प्रीवियसली गवर्न बाय अपार्थाइड लॉज. पहले ये अपार्थाइड लॉज से गवर्न हो रहा था. यहाँ पे इस तरह से भेदभाव किया जाता था. क्या अब ऐसा है? वो हम देखेंगे. The species of South Africa were divided into different groups on this basis. So जो अलग अलग प्रजातियां थी वो इसी आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में वहाँ पे बांट दिया गया था उन्हें. According to the law, their white, black, Indian and other caste were not allowed to have relation with each others. So they don't allow, उन्हें जो है अलाउ नहीं किया गया था कि आप जो है आपस में एक दूसरे के साथ you can make relationship. आप किसी भी अन्य कास्ट, अगर आपकी जो वाइट है तो उन्हें वाइट के साथ ही रिलेशंस बनाने हैं, ब्लैक जो है उनके साथ रिलेशन नहीं बना सकते. सो ये जो है वहाँ का लॉ था. अपार्थाइड लॉ से वहाँ गवर्न हो रहा था ना. सो लॉ वहाँ पे लोगों के साथ, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भेदभाव कर रही थी लोगों के साथ में, तो फिर सामान्य जनता तो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगी ही ना. सो एक गवर्नमेंट ही अगर इस तरह से अपने ही कंट्री के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे तो वहाँ के लोग कैसे आसानी से जी पाएंगे. Here we have discussed about the species of South Africa और इन स्पीसीज़ को, इन लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था.
People of different races could neither live near each other nor use common facilities. So ये जो है अलग अलग जो ग्रुप के लोग थे ये ना तो एक दूसरे के साथ रह सकते थे और ना ही ये कॉमन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते थे. सो ये एक जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है. लाइक अगर आपका स्किन टोन मुझसे अच्छा है, फेयर है, वाइट है, ब्राइट है, तो आपको अलग फैसिलिटी मिल रही है और जो कॉमन फैसिलिटीज़ है, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट पब्लिक टॉयलेट्स, सो वाइट पीपल जो है, पब्लिक बसेस जो हैं, कुछ भी ऐसा जो भी फैसिलिटी उन लोगों के लिए है, तो दूसरे लोग जिनका स्किन टोन उनसे डिफरेंट है वो भी फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर सकते. फैसिलिटी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो तो सबके लिए होनी चाहिए ना. जो गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है उसे तो सबके लिए एक जैसी फैसिलिटी देनी चाहिए, इक्वलिटी रखनी चाहिए ना. बट यहाँ हम देख रहे हैं इनइक्वलिटी. सो ये साउथ अफ्रीका में लोगों को फेस करना पड़ रहा था. और ये कौन कर रहा था? वहाँ की गवर्नमेंट इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी लोगों के साथ. ओके. She explained that white and black people had separate hospitals and hospital vehicles too. उनके अलग अलग हॉस्पिटल्स भी थे, प्लस हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस जो व्हीकल्स होते हैं वो भी अलग थे. अब एक सिचुएशन को इमेजिन करिए स्टूडेंट्स, सडनली किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है और वो जो है एम्बुलेंस के लिए कॉल करता है इमरजेंसी हेल्प नंबर पे, हेल्पलाइन पे. उसे ये कहा जाता है कि अभी जो व्हीकल तो अवेलेबल है लेकिन आप क्या गोरे हो या काले हो? अगर आप गोरे हो तो आपके लिए व्हीकल है, आप काले हो तो आपके लिए व्हीकल ये वाला नहीं है, थोड़ी देर बाद में आएगा. तो क्या होगा आपका? थिंक अबाउट इट. आपके सामने से एक एम्बुलेंस खाली जा रही है और वो आप जो है रोड एक्सीडेंट में किसी को देख रहे हैं, इमरजेंसी ऐसी है, लेकिन वो आपको साथ लेके नहीं जा रहे हैं. थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स. ये जो डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी वहाँ की गवर्नमेंट थी, वहाँ की गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स थे, उस आधार पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ रहा था और लोगों के साथ आपस में एक दूसरे के साथ वो रिलेशंस भी नहीं बना सकते थे. ये वहाँ की गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा था. तो अगर ऐसा लॉ कोई गवर्नमेंट बना देती है तो थिंक अबाउट द पीपल ऑफ दैट कंट्री. वो कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे उनकी ज़रूरतें, इमरजेंसी नीड्स कैसे फुलफ़िल होंगी, कौन उनके लिए मदद करेगा? देखिए यहाँ पे इमरजेंसी फैसिलिटी जो है, हॉस्पिटल जैसी सर्विसेज भी अलग अलग हैं. ठीक है, यानी कि अगर हमारे परिवार में, फैमिली में, पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति जो है वो वाइट नहीं है और उसका स्किन टोन डार्क है, उसे कुछ हो जाए तो हॉस्पिटल्स जो है उन्हें एडमिशन ही नहीं देंगे, एडमिट ही नहीं करेंगे कि आप जो है आपके हॉस्पिटल में जाइए. डार्क लोगों के लिए, ब्लैक लोगों के लिए अलग हॉस्पिटल है, वाइट यहाँ पे सिर्फ हम जो एडमिट करते हैं वो वाइट लोग होने चाहिए. थिंक अबाउट इट, व्हाट इज़ दिस स्टूडेंट्स. सो ये सारी चीज़ें चल रही थी साउथ अफ्रीका में. The hospital cars that were meant for white people were equipped with the necessities that facilities were not available in the cars for black people. जो वाइट लोगों के लिए हॉस्पिटल की जो कार होती थी वो सारी अच्छी फैसिलिटीज़ जो नेसेसिटीज़ हैं उनसे इक्विप्ड होती थी. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द अदर कार, जो ब्लैक लोगों के लिए कार, तो व्हीकल्स अलग अलग थे, प्लस उसके अंदर इमरजेंसी के लिए जो नेसेसिटी इक्विपमेंट्स है वे भी अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो ये क्या फ़ायदा हुआ उस एम्बुलेंस का जहाँ पे ऑक्सीजन मास्क नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है. सो कैसे ब्लैक लोग क्या जीना छोड़ दें? आप क्या चाहते हैं? वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही थी? ओके, ट्रेन्स एंड बसेस वर सेपरेट फॉर देम. थिंक अबाउट इट. बस स्टैंड पे क्या आपने कभी इंडिया में ऐसा कभी देखा है कि बसेस जो हैं काले लोगों के लिए अलग, वाइट लोगों के लिए अलग? नहीं सुना ना. लेकिन यहाँ जो है साउथ अफ्रीका में उस समय ऐसा किया जा रहा था, अपार्थाइड लॉज से गवर्न किया जा रहा था वहाँ पे. और जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी. सेपरेट ट्रेन होगी, सेपरेट बसेज होंगी, यानी कि वाइट लोगों को टच करना भी मना है, पाप है. अगर आप ब्लैक स्किन टोन वाले हो तो ये गलती है आपकी. Isn't it? नहीं, ये सही नहीं है स्टूडेंट्स, पर ये ऐसा हो रहा था. आज हम जब इस बारे में सोच रहे हैं तभी हमने इतना बुरा फील किया है. थिंक अबाउट दोज पीपल हु हैव स्ट्रगल अबाउट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. उन्होंने इस सिचुएशन को फेस किया है. सो कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया होगा और क्या क्या परेशानियां रही होगी. हर जगह पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है. इवन बस स्टैंड्स वर सेपरेट फॉर वाइट एंड ब्लैक पीपल. ओके, बसेस भी अलग है, प्लस बस स्टैंड भी अलग है.
अब अगर आपको भी सेम उसी जगह से जाना है तो आपका बस स्टैंड वहाँ पे नहीं होगा, कहीं और होगा। आप पहले तो वहाँ तक जाइए, उसके बाद में फिर आपको अलग से बस मिलेगी और फिर वो आपका बस स्टैंड होगा। थिंक अबाउट इट, ये क्या लॉ है? क्या यहाँ पे इक्वलिटी मिल पा रही है इन लोगों को? नहीं। आगे, ब्लैक पीपल वर नॉट अलाउड टू वोट। ओ, अगर ब्लैक लोग वोट करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट ही चले जाएगी ना, जो अपार्थाइड लॉज बना रही है। तो इसलिए अपार्थाइड लॉज बनाने वाली जो गवर्नमेंट थी उसने इन लोगों से ये राइट दिया ही नहीं कि जो ब्लैक पीपल है दे कैन नॉट कास्ट देयर वोट, वे वोट दे ही नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि जैसे ये लोग अगर वोट देने लगे तो ये हमारी गवर्नमेंट गिरा देंगे और कुछ और अपनी गवर्नमेंट लेके आ जाएंगे। तो क्या ये एक डेमोक्रेसी में सही है स्टूडेंट्स? क्या ये एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सही है? इससे तो जो कंट्री है वो पिछड़ता जाएगा और वो बैकवर्ड बन जाएगा, बिकॉज़ वहाँ पे जो लोगों के अंदर जो प्रतिभा है वो सामने नहीं आ पाएगी ना। आपकी जो काम है, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं वो सामने नहीं आ पाएगी, तो कंट्री के लिए लॉस है वो। पर वहाँ की गवर्नमेंट इस बारे में सोच ही नहीं पा रही थी, वो इससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे थे कि आपका स्किन टाइप डिफरेंट है, उसके लिए उन्होंने सारी चीज़ें दूसरी कर दी, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्टेंस नहीं है उनके अंदर कि स्किन टाइप या स्किन टोन जो है वो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। ठीक है, आपका बाय बर्थ आपका कलर जो है वो रहता है, और इसी आधार पे अगर डिस्क्रिमिनेशन करने लगी गवर्नमेंट्स तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल गॉट द वर्स्ट लैंड फॉर फार्मिंग। व्हाट इज़ दिस? जो अच्छी ज़मीन है वो तो सफ़ेद यानी कि वाइट गोरी चमड़ी वाले लोगों के लिए रिजर्व करके रखी है, और जो बैरन लैंड है, जो लैंड काम की नहीं है, यूज़फुल ही नहीं है, यूज़लेस है, उस ज़मीन को ब्लैक लोगों को दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या बात हुई? क्या वो फार्मिंग कर पाएंगे उसी ज़मीन पे? नहीं ना। पर फिर भी देखिए उनके साथ हर जगह, हर स्टेज पे, हर सीन में, हर सिचुएशन में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। This shows that black people and Indians were not treated at par with white people. So इससे ये साफ दिखाई देता है कि जो इंडियंस थे और जो वहाँ के ब्लैक पीपल थे वो जैसे उन्हें ट्रीट किया जा रहा था, इट इज़ नॉट गुड। उन्हें वाइट पीपल के अकॉर्डिंग उनके बराबर एक ही स्केल पे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। They were discriminated against. There was a city in the southwest of Soweto where only black people lived. अब एक शहर ही ऐसा था जहाँ पे सिर्फ काले लोग ही रहेंगे, गोरे लोग नहीं रहेंगे, और ये कहाँ था? सोवेटो शहर के साउथ वेस्ट में एक सिटी थी। ठीक है, तो सोवेटो के साउथ वेस्ट में एक सिटी जहाँ पे सिर्फ काले लोग रह सकते थे। हेक्टर पीटरसन लिव्ड देयर। सो हेक्टर पीटरसन जो है यहाँ रह रहे थे। ठीक है, रहता था। द वाइट पीपल देयर स्पोक द लैंग्वेज अफ्रीकान्स। अब जो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो अफ्रीकान्स, उनमें भी जो वाइट पीपल थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? अफ्रीकान्स बोलते थे। ठीक है, सो दे स्पोक द लैंग्वेज अफ्रीकान्स। एंड व्हाट अबाउट द ब्लैक पीपल? वो क्या लैंग्वेज बोलते थे या उन्हें कौन सी लैंग्वेज बोलना पसंद था? देखते हैं। Hector and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. अब देखिए, हेक्टर और उसके जो कंपेनियंस थे, उसके अदर जो स्कूल स्टूडेंट्स थे, उन सभी को वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की जो स्कूल अथॉरिटी थी वो फोर्स कर रही थी कि येस यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज दैट वाइट पीपल यूज टू स्पोक। सो अफ्रीकान्स सिखाने के लिए उन्हें फोर्स किया जा रहा था, लेकिन वे लोग चाहते थे कि उन्हें ज़ूलू सिखाया जाए, जो कि उनकी लैंग्वेज है, खुद की लैंग्वेज है, लेकिन उसे नहीं सिखा रहे हैं। तो देखिए, लैंग्वेज के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लैंग्वेज को इंकरेज नहीं किया जा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि जिस लैंग्वेज में वाइट पीपल कंफर्टेबल हैं वही लैंग्वेज जो है बोली जाए, पढ़ी जाए, लिखी जाए। ज़बरदस्ती भी सीखना पड़े तो सीखना ही चाहिए, सीखना ही पड़ेगा। ये क्या है?
क्या आपके ऊपर आपकी स्कूल अथॉरिटीज़ कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए प्रेशर बनाती है? नहीं ना। स्टूडेंट्स, यू हैव योर ऑप्शंस, यू हैव योर चॉइसेस। सो आप जो है अपनी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। आपके लिए लैंग्वेज जो थर्ड लैंग्वेज है उसके लिए चॉइस भी है ना, किसी तरह का कोई फोर्स तो नहीं है ना। सो वी हैव टू स्टडी द सब्जेक्ट्स, बट यहाँ पे तो उनकी लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज वे लोग यूज़ करना चाहते हैं, ओन लैंग्वेज, उसे भी दबाया जा रहा है, उसे भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये आप बर्दाश्त कर पाएंगे स्टूडेंट्स? नहीं। सो क्या होता है, अगर कोई पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है तो लोग सहते जाते हैं और बाद में प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं। तो वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सीलेसली एंड शॉट एट द क्राउड। सो जब प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया तो साउथ अफ्रीका की जो पुलिस थी वो भी वहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलती है। उन्होंने क्या किया, लोगों की बुरी तरह से पिटाई की और क्राउड के ऊपर शॉट किया, यानी कि फायर खोल दिया। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर, और उन्हीं की एक गोली का शिकार बना हेक्टर पीटरसन। दिस वॉज ऑन 16 जून 1976। और ये घटना आज के कितने सालों पहले है स्टूडेंट्स? वी आर लिविंग इन 2022 एंड ये जो घटना है, ये जो सिनेरियो है, ये है 1976 का। आज के कुछ ज़्यादा साल नहीं हुए हैं। और देखिए, ये जो घटना है ये सवाल उठा रही है उस कंट्री की गवर्नमेंट पर कि क्या चाहती है वहाँ की गवर्नमेंट, क्या वहाँ की गवर्नमेंट अपनी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं चाहती? अगर ऐसा नहीं चाहती है तभी वो अपने ही लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, उन लोगों को जो प्रोग्रेस का पाथ है उस पर मूव नहीं करने दे रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उन्हें रोक रही है, उन्हें पिटाई कर रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं। क्या चाहती है वहाँ की गवर्नमेंट? सो इस तरह से स्ट्रगल बढ़ता गया और लोगों ने अपना पेशेंस खो दिया। धीरे धीरे लोगों ने जब प्रोटेस्ट करने का सोचा, पुलिस ने उन पर फायर भी किया। इसी दौरान हेक्टर पीटरसन वॉज किल्ड। सो हेक्टर पीटरसन, जिसकी क्लिप्स, जिसकी पिक्चर्स जो है उसकी मदर के जो रजिस्टर उसे मिला उसमें मिली थी, वो गोलियों का शिकार बन गया। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो अफ्रीका में एक नेशनल कांग्रेस जो कि एक कुछ लोगों का एक ग्रुप है, who led the struggle against apartheid, और इन्होंने इस अपार्थाइड के खिलाफ एक स्ट्रगल किया। एंड their most well known leader नेल्सन मंडेला fought the apartheid system for several years। और जो नेल्सन मंडेला जी हैं उन्होंने अपने स्ट्रगल को काफ़ी सालों तक जारी रखा और he was the well known leader। बहुत ही जाने माने नेता रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इन्हें जाना जाता है इनके स्ट्रगल के लिए, और लास्ट में इनकी जीत होती है। यानी कि साउथ अफ्रीका में ये जो अपार्थाइड लॉज थे इन्हें बंद किया गया। ये जो स्ट्रगल रहा इनका, इसमें ये सक्सेस को प्राप्त करते हैं और इनका स्ट्रगल की जो स्टोरी थी वो हमने यहाँ डिस्कस की है। फाइनली दे सक्सीडेड एंड इन 1994। सो 1994 यानी कि 1976 में जब ये बहुत ही बड़ा प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोलियां चलाई गई, तब जिसमें हेक्टर पीटरसन की मौत हो गई थी, वॉज जस्ट 15 ईयर ओल्ड स्कूल गोइंग बॉय। और वहाँ से स्ट्रगल और आगे बढ़ता रहा। नेल्सन मंडेला वॉज अ वेल नोन लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने भी अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट जारी रखा और फाइनली 1994 ही वॉज सक्सीडेड। सो ये हमने देखा है स्टूडेंट्स इनके बारे में। साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि अब ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है जहाँ पे क्या होगा, किसी भी आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यानी कि लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ थी कि जो स्किन टोन, स्किन टाइप, स्किन कलर के आधार पर जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो नहीं होगा। वहाँ की जो लोग हैं उन सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए होगी। सो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, यस, यही एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेन
एलिमेंट होता है कि वहाँ पे इक्वलिटी और जस्टिस होना चाहिए। यानी कि जो हेक्टर पीटरसन और उस जैसे जो लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, अपनी आवाज़ उठाई, उन्हें अब जस्टिस मिला। और यहाँ से साउथ अफ्रीका के अंदर गवर्नमेंट आती है, कैसी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो अपार्थाइड लॉज को फॉलो नहीं करती है, जो सभी को इक्वलिटी प्रदान करती है। सो साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल। सो अब जो रेसेस के आधार पर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए थे वो सब हटा दिया और इक्वलिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका। और ये जो लॉ बनाया है, किसने बनाया? वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो 1994 के बाद में साउथ अफ्रीका जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे आती है और वहाँ भी अब डेमोक्रेसी है। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट द अपार्थाइड स्ट्रगल स्टोरी फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड वी हैव लर्न अबाउट द स्ट्रगल, द पेन, yes, the situations the people were facing in the South Africa, and we have learned यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसका मेन एलिमेंट क्या होना चाहिए? इक्वलिटी फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल। ओके, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.